Okay student, this is the second video of polynomials. In this video class I will discuss about the relations between the zeros and coefficient of a quadratic polynomials. Okay, so everyone knows the standard form of the quadratic polynomials. So this is the standard form: ax square plus bx plus c. This is the standard form of the polynomials where a, b and c are real. Okay, real means जैसे a and b 1 2 3 4 root 2 root 5 and as well also negative sign minus bx minus c everything, but a not equal to 0. अगर इनका कोएफिशिएंट यदि 0 हो जाएगा तब पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, कारण ये 0 हो जाएगा पूरा, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. हमको चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होना चाहिए. ओके, सो अनदर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म्स, सो ax स्क्वायर प्लस bx भी हो सकता है, और this is the standard form, or ax square plus c also, here c 0, okay, here b 0, or a b also the quadratic polynomials ax square. Okay, this is the standard form, but हमको चाहिए relation between 0. Okay, 0 means 0 already I have discussed the first part of the polynomials. 0 means value of the x, okay, value of the variable terms. This is called the 0. So it has the 2 0, okay, 2 degree is the 2, so it has 2 0, means it has two factors. Suppose the let the 0, the two zeros are alpha and beta. This is this read as the Uchcharan pronunciation alpha, alpha and beta. Okay, this is the beta Uchcharan. Okay, this is the beta. There are the two zeros are alpha and beta. Okay, alpha and beta are the real numbers. What is the Greek letter? What is so understanding? Alpha 2 3, okay, beta 2 0 0, half 1 by root 3 by root 3, कोई भी सेंस नंबर हो सकता है. अल्फा बीटा कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है अल्फा, हम लोग को सुविधा के लिए. अब रिलेशन कैसे होगा? रिलेशन दो तरीका होता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो विद द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. So write the sum of 0. So write sum of zeros. Okay, sum of zeros you can write, क्योंकि already हम the two take the two zero alpha and beta. So this is the alpha and beta sum of the zero. sum में प्लस करोगे, दोनों जीरो के प्लस करोगे, उनका जो रिजल्ट देगा, this is called the sum. So this is the sum of zero means alpha plus beta. The relation between the minus b by a. This is the coefficient of the x. Okay, this is the coefficient, b is the coefficient and a is the coefficient. Where किसका coefficient? Minus b किसका coefficient? Minus coefficient coefficient of x divided by coefficient of x square. This is the relation sum. And another relation, product of 0. Okay, product of 0. So you can write also product means multiply alpha into beta equal to c by a. So therefore the coefficient, c is not the coefficient, c is the constant. Okay, constant term divided by the coefficient. किसका coefficient? A means coefficient of x square. This is the relation. So you have to remember, you had better memorize. You के माइंड में सेट कर रखोगे, हमको इसको याद करना पड़ेगा. सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, एक्स स्क्वायर. सो राइट क्लियरली x square and
product means after multiplying the result is called the product. So there is the product of 0 means alpha into beta means c by a, so constant term divided by coefficient of x square. So this is the most important, so you have to remember always, never forget. So you will use this rule, so apply the question, pause this video, note down on your copy. Okay, next question I will come. Okay student, हम लोग अभी जो डिस्कस किया था रिलेशनशिप ओके बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. हम यहाँ पे देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड द जीरोज, फर्स्ट फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. और हम फर्स्ट पार्ट में हम लोग का फाइंड द जीरो फाइंड किया था, लेकिन इसका अभी देखो एंड द पॉलिनोमियल्स देखो यहाँ पे देखा हम क्वेश्चन नंबर 1 देख 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट. ओके, जस्ट हमने सीखा था सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी बाई ए, ऑलरेडी नोन. इसको हमको प्रूव करना है. यहाँ पे देखो तो फर्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 6 तक लिखा, सेम क्वेश्चन ए वर्ड बोला हम नहीं लिखा. यहाँ पे देखो ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देन कंपेयर विद द कोएफिशिएंट सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यही रिलेशनशिप और कुछ नहीं. चलो फर्स्ट देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व, किसी भी क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें बेसिस में आएगा और मोन टाइप का. सो अप्लाई द स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टर मेथड में, और नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला. ये भी हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से फैक्टर होता है. इसका फॉर्मूला क्या बोलते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसको भी हम लोग का यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर करना पड़े. देखो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसमें यूज कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वन क्वेश्चन आई विल डू द वन क्वेश्चन. देखो फर्स्ट क्वेश्चन 1 आई वर्क आउट, सेम क्वेश्चन टाइप इसी टाइप का आएगा और डिस्कस नहीं करेगा क्योंकि दिस इज द वीडियो क्लास को कम समय में तुम करना है. टाइप बोला देखो कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा. ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन, फर्स्ट फाइंड द जीरोज माने फाइंड द फैक्टर, माने फाइंड द फैक्टराइजेशन करोगे 7x प्लस 12. जीरो जब फाइंड कर दो फैक्टर करना ही पड़ेगा बेटा, विदाउट फैक्टर्स फाइंड करके हम लोग को जीरो फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इज स्प्लिटिंग मेथड फैक्टर. सो 12 को फैक्टर करोगे, कौन सा फैक्टर है देखो 3 इंटू 12. सो दिस इज सिंबल, द स्प्लिटिंग मेथड सिंबल देखो ऑलरेडी 9 प्लस से कर चुका है. द प्लस ये दोनों को प्लस करके हमको प्लस 7x आना है. तो हम इसको रिप्लेस करोगे 7x को प्लस 4x प्लस 3x. ओके, दिस इज द रिप्लेस बाय द प्लस 7x इक्वल टू 12. तो हम प्लस 7x को रिप्लेस कर दिया. दिस इज द मतलब स्प्लिटिंग कर दिया मिडिल टर्म, मिडिल टर्म में 7x माने bx टर्म को मिडिल टर्म कहा जाता है. ओके, देन यू कंपेयर देन द कॉमन, ओके टेक द कॉमन, शेयर करे x, तो x प्लस 4 एंड देन हियर इज द 3 इज द कॉमन x प्लस 4. देखो इसमें ध्यान रखोगे ये जो ब्रैकेट में जो लिखा है दोनों सेम होना चाहिए. अगर सेम होगा तो मेरा मैथ सही है. इसके बाद आफ्टर दैट यू राइट द x प्लस 4 इज कॉमन, बोथ में है, नेक्स्ट x प्लस 3. ओके, देयर आर टू फैक्टर्स, मतलब 2 0 हो गया. सो टेक दिस फैक्टर इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0. तुम किसी को नंबर लाओगे उसी टाइप का करोगे. नेक्स्ट दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 4 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 3. ओके, माइनस 3, दिस इज द इक्वल टू माइनस 3. देयर आर 2 0, 2 0 कौन कौन जीरो आ गया, माइनस 4, 2 zeros are माइनस 4 एंड माइनस 3. इसका हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो. 2 जीरो मेरे पास आ गया, 2 जीरो कौन कौन, माइनस 4 माइनस 3. एंड रिलेशनशिप करना है जीरो एंड कोएफिशिएंट के साथ. कोएफिशिएंट मैंने गिवन देखो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इनका कोएफिशिएंट हमको करना है. तो हम लोग को कोई भी रिलेशनशिप करोगे सम ऑफ द जीरो, तो हमने क्या होगा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या रिजल्ट मिला था, सम ऑफ जीरो माइनस 4 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू, इसमें हमको रिजल्ट कितना आ गया बताओ. देखो प्लस माइनस आ गया यहाँ पे माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7. ओके, अंडरस्टैंड. सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स क्या होगा, माइनस 4 इंटू माइनस 3 इनसाइड द ब्रैकेट. ओके, माइनस, सो माइनस प्लस 12 आ गया. सो दिस इज द
सम ऑफ द जीरो, द रिजल्ट जो हमको जो जीरो मिला उसका हमको नियर। इसके बाद हम कोएफिशिएंट से सम ऑफ द जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरो, ओके, सम ऑफ जीरो राइट फ्रॉम द कोएफिशिएंट माइनस बी बाई ए इक्वल टू, हर इज द माइनस, ओके, बी देखो यहाँ पे है, बी देखो 7 बाई ए 1, जिसका कोएफिशिएंट देखो इज हैविंग नाउ द 1, ओके, इसका इट हैज नो कोएफिशिएंट मींस हैविंग द 1 कोएफिशिएंट, राइट 1, दिस इज इक्वल टू -1। देखो यहाँ पे जो हम सम ऑफ द जीरो लिखा, यहाँ पे सम ऑफ द जीरो इज द कोएफिशिएंट, बोथ आर इक्वल हो गया, वेरीफाइड हो गया बेटा, ओके। नाउ वेरीफाई एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फ्रॉम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो फ्रॉम द कोएफिशिएंट, क्योंकि क्या, व्हाट इज द रिजल्ट बोल दो, रिमेंबर c by a, व्हाट इज द c इज द कांस्टेंट टर्म प्लस 12, सो राइट ओनली 12 डिवाइडेड बाय 1, ओके, 1 कोएफिशिएंट 1, सो इट इज रिजल्ट इक्वल टू 12। देखो यहाँ पे भी कौन हम लोग को वेरीफाई होगा, बोथ आर वेरीफाई, ओके, तो यहाँ पे लिख दोगे वेरीफाइड, ओके, हम लोग का वेरीफाइड कर लिया दिस आंसर। तो रिलेशनशिप के साथ हम लोग का जो फैक्टर निकाला था ए फैक्टर से, आज जो रिलेशनशिप हम लोग का लिया था कोएफिशिएंट से, सो दिस बोथ आर इक्वल। सो के नेक्स्ट क्लास हम द फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके, पॉज दिस वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी, ओके, okay student, just discuss the question number 1. Question number 2 you can think, okay, first of all multi product the splitting, middle term factorization करोगे। so question number 4 को कैसे करोगे, these are questions same, किंतु you have to find the zero, first find the zero and verify the relationship between the zeros and coefficient, so वे same question pattern करोगे, लेकिन first of all किंतु middle term factorization करना ही पड़ेगा बेटा। उसको दो को निकाले, दो फैक्टर निकाल, दो फैक्टर को इसी फैक्टर को वैल्यू लेके जीरो लाओगे, उससे एक्स का वैल्यू आ जाएगा, बस सम करोगे, एड करोगे। फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का हम बना, देखो क्वेश्चन 4 देखो हम बना रहे, सेम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टराइजेशन, ओके, देयर आर टू टर्म्स, ओके, सो यू कैन यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला यूज कर सकते बेटा। তাহলে फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वल एक्स स्क्वायर, ये कौन सा नंबर का स्क्वायर बोले हो अंडर स्क्वायर, ये रियल नंबर सीखा चुका था हम लोग का, रियल नंबर किंतु मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि नहीं होगा तो हमारा वीडियो वाला देख लोगे। सो देन यू विल डू द फॉलोइंग टू द x प्लस √3 एंड x माइनस √3, देयर आर टू फैक्टर्स, ओके, सो ईच फैक्टर विल बी द जीरो, टू फाइंड द जीरो करने के ताहले x को देखो x प्लस √3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3 इक्वल टू 0। तुम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं। सो x इक्वल टू माइनस √3 एंड हियर दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू √3, ओके, दे आर द टू फैक्टर्स, सो दे आर दिस वैल्यू इज कॉल्ड द जीरो। सो जीरोज, टू जीरोज आर माइनस √3 एंड √3, इसका हम लोग को निकालना है सम ऑफ जीरो, sum of zeros means there are two zeros, okay, minus √3 plus √3, okay, sum of 0 is equal to, sum of 0 is equal to 0 हो गया। same number, so different sign minus and same number देखो, so it will be 0 and then the product of the 0 and product of 0, so minus √3 inside the bracket into √3, so it will be plus and minus 3, √3 into √3, okay, रियल नंबर नहीं होगा तुम्हारा। इसके बाद दिस इज द जीरोस फ्रॉम दिस फैक्टर से आ गया, जीरो से फाइंड कर। इसके बाद हम लोग कोएफिशिएंट से लेकर गए, सर सम ऑफ जीरोस फ्रॉम द कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे हम लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो बी का देखो यहाँ पे वैनिश, बी इज द जीरो, ओके, हम डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, बी में भी जीरो, लेकिन ए जीरो कभी नहीं हो सकता, बी जीरो हो सकता, चलिए 0 बाय इनका कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू 0, ओके, दिस इज द वेरीफाइड। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स दोनों मल्टीपल, ओके, सो बी दिस देखो कोएफिशिएंट से लिखोगे c बाई, ओके, सो राइट यू कैन c बाई a, c यहाँ पे क्या बोले तो c इज द -3 एंड a 1, दिस इज द -3, देखो बोथ आर इक्वल, सो दिस इज द वेरीफाइड,
ओके, दिस इज द वेरीफाइड। ओके, बोथ आर इक्वल, बोथ यहाँ पे दोनों सेम है, देखो ए भी इक्वल, सब बोथ आर, हम लोग का ए भी लिख सकते हैं वेरीफाइड। ओके, तो हम लोग को सीख गया। हम अभी आएंगे, I discussed about the formation of the quadratic polynomials. Okay, pause this video, note down on your copy. Okay, student, the formation of a quadratic polynomial with given zeros. Okay, so two given zeros देगा, but sum of the zeros and product of the zeros are given, so you can find the form of a quadratic polynomials. So how to form? So you have to remember this formula. So the quadratic equation form is the x square minus sum of zeros into x. This is the standard form of the quadratic polynomials plus product of zero. Okay, this is the rule. Product of zero. Okay, this is the form. This is the standard form of the quadratic polynomials. So you can write also x square minus sum of the zero का हम लोग का क्या है, दो two zeros is given alpha and beta. So take the sum of the zero. So alpha plus beta into x plus alpha into beta. So you can also remember. Okay. So x square, this is the form of the quadratic polynomials. You can use x square minus sum of the zeros into x plus product of the zero and x square minus alpha plus beta into x into alpha into beta, मैंने product of the zeros. So I question देखो, हम यहाँ पे लिखा है, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर 1 and 3. ओके, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन जो आएगा तुम लोग यही वाला यूज करोगे. First of all, write the sum of the zero. What is the sum? There are two zero, 1 and minus 3. Question look at the word, read करो. Find the quadratic polynomials whose zeros are 1 and minus 3. So you can write easily the quadratic polynomials. तुमको लेना quadratic polynomials लिखना है. So you can use this. Okay. So first of all, write the sum of zeros. Sum of zeros. What is the result? देखो 1 plus minus 3. Okay, this is equal to 1 minus 3 equal to minus 2. Sum of the zeros get result. And then as well as you write the product of zeros. Okay, product of zeros equal to 1 into minus 3. So equal to minus 3. Okay, so then you can write this the quadratic polynomials equal to quadratic, therefore quadratic polynomials क्या होगा था, एक राइट एक्स स्क्वायर माइनस जाओगे सम ऑफ जीरो, सो यू राइट द माइनस 3 एंड देन एक्स, ओके यार माइनस एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ओके माइनस 2, सॉरी इसे माइनस 2, सम ऑफ द जीरो माइनस 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो माइनस 3. ओके, दिस इज अ माइनस, सो कीप इन द ब्रैकेट. सो देन राइट द आंसर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2x and plus a minus 3. This is the required answer. Okay, required answer. So you can work out easily. So use the x square minus sum of 0 minus 2 into x plus product of the 0. So use this rule. Okay, next question. अगर यदि तुम्हारा जीरो दे देगा, अगर गिवन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sum of whose zeros is 8 and their product of 0 is 12. ओके, यहाँ पे सम का गिवन रिजल्ट दे चुका है एंड प्रोडक्ट गिवन है, सो वी कैन राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 अंक आंसर देखो कैसे लिखोगे. फर्स्ट देखो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर, ओके माइनस सम ऑफ जीरो. व्हाट इज द सम ऑफ जीरो? सम ऑफ जीरो 8, ओके नो साइन, so minus x and product of the zero plus then write and 12. This is the answer. Okay, sum of the zero. Next question, one question there is the part शॉर्ट को सम दे दिया, ठीक इसी टाइप का देखो, here is the sum of zero 1/4
and product of 0 minus 1. Another type of the question है, क्वेश्चन को देखो, ठीक है जी। क्वेश्चन का जो टू द वन पार्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन को देखो वन हम कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन को वन कर दिस लाइक दैट। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा तब एक्स स्क्वायर लिखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या दोगे माइनस दोगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो इज माइनस शुड ओनली 1/4, so write 1/4 x and product of the zero minus 1, so you write the plus and then minus 1. Okay, then equal, simplify, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/x minus 1. It is not the quadratic polynomial standard form because देखो यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया, तो इसको 4 का हटाने के लिए ऑल टर्म विल बी मल्टीप्लाई बाय द 4 and 4 will be removed. So this is the 4 multiplied 4x square minus x minus 4. This is the standard form of the quadratic polynomial. This is the sum of the zero. Okay, तो all number, all term will be the multiplied by the 4 because the नीचे देखो जो 4 दिया गया, अगर ये भी चीज होता था दोनों के एलसीएम करोगे, एलसीएम के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको रैशनल नंबर में कोएफिशिएंट करेंगे नहीं चाहिए, हमको रियल नंबर ऑल्सो है, रियल नंबर यू कैन राइट ऑल्सो 4. सो हमको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा इसी टाइप का, हम लोग का लिखा था कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका साइन प्लस माइनस हो सकते हैं, इसका कोई डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इनका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए हमको शुद्ध ओनली देखो सिंपल नंबर होना चाहिए. सो इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो यू कैन राइट द आल्सो टू क्वेश्चन द सम ऑफ द जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द 1/3. सो यहाँ पे लिखोगे बस हो गए होंगे और √3 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यहाँ पे देखो सम ऑफ द 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द √5, तो इसको लिख दोगे तो इसका आंसर ऑटोमेटिक आया था. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें बना देता है, एक्स स्क्वायर लिखोगे -0 इसको लिखने पर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द देखो √5 हो गया यहाँ पे. ओके, समझ गया चीज को, इसका प्रोडक्ट ऑफ द 0, इसका भी हम लोग को 1 दे दो, बोथ आर इक्वल दे दो 1 सो इसका आंसर हम लोग का देखो 4 का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, सम ऑफ द 0 एक्स स्क्वायर माइनस x हो जाएगा प्लस 1, जिसका 4 का आंसर हो गया. ठीक है ना बेटा, इसी टाइप का करोगे. ओके ओके, पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन ऑन योर कॉपी. ओके ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द मोस्ट क्वेश्चन. इसी टाइप का हम लोग का सीखा, अगर सम ऑफ द 0 सीखा, प्रोडक्ट ऑफ द 0 सीखा, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखा. ओके, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k और p और a, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में यदि तुम्हारा k लिखा रहेगा व p लिखा रहेगा और p a लिखा रहेगा तो उसको फाइंड करना है. तो इसके लिए तुमको क्या दिया रहेगा, उसके लिए तुमको दिया रहेगा फाइंड 1 0 इज गिवन और 1 फैक्टर इज गिवन, बोथ आर. ओके, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, वन क्वेश्चन इफ 3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स दे दिया बेटा. इसमें देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करोगे, k इज इन हियर. सो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू. हाउ टू फाइंड, सेम क्वेश्चन बेटा 2 3 4 5 सेम क्वेश्चन पैटर्न. अगर p रहेगा p का वैल्यू फाइंड कर देगा, k रहेगा k रहेगा k का, यदि a रहेगा a का वैल्यू फाइंड कर दो. इसमें k दिया गया k का वैल्यू, तो कैसे करोगे बेटा. सो कीप इट माइंड, कीप इट माइंड, इसको यू हैव टू रिमेंबर. जब x का वैल्यू यहाँ पे हम बोल दिया, देखो 0 मीन्स वैल्यू ऑफ द x, तहाँ पे देखो 1 0 is given, 3 is the 1 0, so put this value of the x in here and this result will be the 0, other 0 will be the, so this polynomials, these quadratic polynomials will be 0 when जब put करोगे x का value 3. Okay, so put that here the question number 1, हम I do 1 count the question number 1, 2 into देखो x का वैल्यू कितना पुट करोगे 3 पुट करोगे, क्योंकि इनका एक 0 दे दिया, तो यार पुट द 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k एंड इट विल बी 0. इसको तुम लोग को रिमेंबर रखने पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि जब भी हम लोग को 1 0 पुट करेंगे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक का रिजल्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, दिस इंप्लाइज यू कैन यूज दिस हियर, 2 into 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0. So this is the 18 plus 3 plus k equal to 0. So this implies 18 and then 21 तुमको ट्रांसपोज करोगे, therefore k equal to -21. Okay, this is the result.
Okay, same question type you can do the question number 2. If the 4 minus 4 is a 0 of a polynomial, यहाँ पे लिखा शॉर्ट फॉर्म में लिखा find the value of k. Okay, there the so question number 3. If 1 is a 0 of a x square minus 3k 3 into a minus 1 into x minus 1. So you'll put the 1 and get the result will be the 0. जैसे क्या 1 जैसे क्या इसी तरह का 1 2 3 इसी तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा. सीबीएसई न्यूज एकदम फुल्ली न्यूज सिलेबस हम अभी नहीं. ओके, हम लोग को जो प्राइम मिनिस्टर जो से बताया गया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उससे से तुम लोग डिटेल्स में पढ़ना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 कर दे 3 में 4 में देखो क्वेश्चन इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. यहाँ पे अगर यहाँ पे यदि फैक्टर हिसाब से दे देगा गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर क्वेश्चन नंबर 5 को देखो कैसे करोगे. हाउ टू राइट द 5. तब फर्स्ट देखो यहाँ पे जो फैक्टर दे दिया दिस फैक्टर विल बी 0. ओके, सो x इक्वल दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस ए. x इक्वल टू माइनस ए तुमको फर्स्ट करना पड़ेगा. ये पे तुमको घुमा दिया जो तुमको 0 नहीं दिएगा फैक्टर दे दिया तो फैक्टर वैल्यू 0 ले लोगे बस आसानी से. इसके बाद x है. इसके बाद पुट करोगे यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया था और उसका रिजल्ट आ जाएगा पुट. तो यहाँ पे क्या रिजल्ट में देखो 2 इंटू यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर हो गया. क्या देखो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दे दिया यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 इंटू ए गिवन एंड माइनस ए. ओके, माइनस ए प्लस हेयर 5 इंटू माइनस ए. ओके, प्लस 10 इक्वल टू 0. ओके, 10 इक्वल टू 0. समझ गए चीज बेटा? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? जो फर्स्ट है पॉलिनोमियल्स की इसका वैल्यू पुट करोगे एंड दिस इंप्लाइज देखो यहाँ पे कितना हो गया स्क्वायर 2 स्क्वायर इज गिवन प्लस देखो यहाँ पे कितना हो रहा बताओ यहाँ पे माइनस प्लस से माइनस 2 स्क्वायर हो गया प्लस. ओके, यहाँ पे प्लस से माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0. यहाँ पे देखो प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर काट जाए कैंसिल कर सकते रिमूव एंड देन गेट आउट देखो माइनस 5a. दिस इज द माइनस 5a. क्लियर लिखो माइनस 5a. ओके, इसको ट्रांसपोज करो माइनस 10. देखो बोथ साइड माइनस कैंसिल कर सकते. दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 2. दिस इज आंसर. ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आएगा. ठीक इसी टाइप का सब को करोगे. अगर पुट करोगे इसका वैल्यू p फाइंड करोगे a फाइंड करोगे इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा. और क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो में थर्ड वीडियो में और कुछ क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करेंगे. ठीक है ना मोर. एंड जो बोर्ड का जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसी टाइप का तुम लोग क्वेश्चन करेंगे. ओके, पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन ऑन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट, आई विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास. सो एंड प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा तुम लोग को तुम्हारा दोस्त के साथ क्लासमेट के साथ शेयर करोगे दिस वीडियो को. अगर तुम्हारा खुल जाएगा अगर प्लीज to subscribe to my channel. Okay, everybody to subscribe my चैनल को सब्सक्राइब करोगे. अगर तुम लोग कुछ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल दोगे हम लोग को तुमको कमेंट्स के साथ हम भेज देंगे. थैंक यू. ओके, आई विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास. ओके.